frequently performed at every 1 meter, 1.5 meter along the depth of the. So this is the very good, you can say, the parameter which we obtain during this process, and we can correlate these parameters to almost every geotechnical design parameter which we want to estimate. Sampling is another aspect during the drilling. So these are the things which we have already discussed in detail. Then comes the laboratory testing or the laboratory evaluation part. In that case, as I explained in the class, that you will get a lot of samples from the field process. SPT test will generate a disturbed soil sample, then you recover many undisturbed soil samples. Obviously, where you have a cohesive stratum, you prefer to take UDS. And in case of sandy soil, generally we have this SPT samples. You have to think very intelligently that how many samples you need to test and what kind of tests are required. So depending upon the strata or the soil type, you decide about the type of the test. For example, the grain size analysis is common to all. You need to perform sieve analysis, hydrometer if cohesive soils are there, Atterberg limits, specific gravity. So these are the basic test, also known as the classification test. Then for the strength evaluation, you go for the shear strength parameters. In case of sandy soil, generally we go for direct shear or triaxial, but for cohesive soils, we generally go for unconfined compression test. We go for consolidation test, almost mandatory in case of cohesive soils. So depending upon the type of the soil, so you along the depth, you plan that sufficient number of tests for each parameter are there so that you can get that parameters reliably. So then obviously at this level as an academic student, you need to know that the detail of each test. Okay? So as a second part, you are doing that some tests you have already done and some will be elaborated by Aisha. Maybe performance if पॉसिबल हुआ वापस इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुलती है तो हम कुछ टेस्ट कर सकेंगे अदरवाइज but these are the tests which you have already performed. So the main thing is that you carefully study and refresh, and main thing is that from the test how the soil parameter is obtained. Up to this point, I think we have touched or we have covered in the class, and that was जैसे मैंने पहले कहा कि मैं हमेशा सामने बैठ के बिठा के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके जो है वो पढ़ाने का मजा आता है. तो ये ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहरहाल नया है लेकिन मजबूरी है. अब यहाँ तक जो पार्ट है, लास्ट टाइम भी बात हो रही थी कि हमने देन यू विल गो टुवर्ड्स दी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो कैन से कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. वन इज नोन एज द फैक्चुअल रिपोर्ट. Factual report is the part which is the actual data which you recover from the field and you recover from the laboratory evaluation. Now, based on this actual data, you compile in a standard format. जैसे sieve analysis आपने किया है, hydrometer किया है, then you need to know that how to present this data. And similarly, the field boring logs which have been prepared at the site, then they need to you can say plot based on the laboratory data जो है वो हम उसको compile करेंगे. तो ये जो सारा जो actual आपका डाटा है उसको एक standardized form में present करना जो है वो that is the factual report. So this is very important and at this stage for आप as a student के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि हमने हर component को किस तरह से present करना है. Then the second part is which is the more important and जो कि शायद हमारा इंजीनियर्स का काम ही ये है. बाकी चीजें तो एक्चुअल प्रैक्टिस में आपका क्रू और आपके जो नीचे सपोर्टिंग स्टाफ है वो कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम.
though you are supervising all activities. But this part is exclusively on the geotechnical engineer's part, interpretative report. That includes the factual data as well and the interpretation. Because you have lot of data. For example, you have performed 20, 30 direct shear test and then sieve analysis, so many triaxial test, maybe consolidation test. But for the same site, you have to develop the average soil profile, and you have to give the representative soil parameters to that. So how to select those parameters? Should we take the average of all parameters which you have obtained from the laboratory testing? For example, you have 10 direct shear test and you get C and phi value. And to select that, you can say we should take average. No, it's not like this. You have to select this intelligently, looking at the literature. As we last time said, that there are some limits for each parameters. आपको देखना है कि आपके पैरामीटर्स उनके साथ हार्मोनाइज कर लें। ऐसा ना हो कि आपके पैरामीटर्स जो हैं वो आउट ऑफ बाउंड जा रहे हों। तो एक तो ये इंजीनियरिंग जजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेलेक्टिंग द सॉइल पैरामीटर्स। बट लुकिंग एट द लेबोरेटरी पैटर्न, सो यू विल सेलेक्ट the representative soil parameter for a certain, you can say, the soil stratum layer. For example, ये आपका मैनुअल जो है, I would again say कि ये इस पार्ट को आपने साथ कवर करें। उसमें भी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसने अबाउट फैक्चुअल रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो यही चीजें been mentioned there. In case of factual report, you have to list down all the parameters, all the tests which you have performed in the field, in the laboratory, and then you have to summarize the results. So this is the factual part. Then is the interpretative report. This report includes the factual report. वो सारा डाटा जो आपने कंपाइल किया होगा वो उसके अंदर मौजूद होगा। The data from the factual report will have been used to produce cross sections showing the representative strata and groundwater table. So जैसे मैंने कहा कि you need to develop now the soil profile of your site based on the various bore logs. आप उसको carefully देखेंगे। Last time मैंने आपको बताया था कि एक तो आप individually bore logs को plot करते हैं एक शीट के ऊपर, दो शीट के ऊपर, just to see the minor details of each bore. But then you plot all the boreholes data on one single sheet so that you can see in front of you कि आपका जो different layers हैं उनका क्या sequence है, और उसको देखते हुए आप एक फिर प्रोफाइल, जो सब सॉइल प्रोफाइल है उसको डेवलप करते हैं कि फॉर एग्जांपल सरफेस से अप टू दिस मच डेप्थ ये सॉइल लेयर है और उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। जैसे अभी बात हुई कि वो आपने सिलेक्ट करने हैं जो टेक्निकल डिजाइन पैरामीटर्स। वो पैरामीटर आपको कहीं भी किसी एक टेस्ट के नहीं होंगे, ना वो किसी की एवरेज होगी। बट लुकिंग एट योर रिजल्ट्स, लुकिंग एट द लिटरेचर, एट यूजिंग योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर जजमेंट, ठीक है ना, तो वो आप सिलेक्ट करते हैं। जो लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि उनको एट ए ग्लांस देखने के लिए आप उनको कुछ समराइज करके लिखें। बिकॉज आपने फॉर एग्जांपल आपने सीव एनालिसिस किए हैं, 30 सीव एनालिसिस किए हैं, इसी तरह आपने सो मैनी लिक्विड लिमिट टेस्ट किए हैं, डायरेक्ट शेयर किए हैं, वो इंडिविजुअली शीट के ऊपर आपने प्लॉट कर लिए हैं। दैट विल बी वेरी हेक्टिक कि आप किस तरह से उनको देखेंगे। A summary of test results is generally prepared on one sheet or two sheet so that in front of you all test values are there, और उसको देखते हुए आप जो है वो वैल्यूज को सिलेक्ट कर लें। तो ये भी आपकी एक फैक्चुअल जो पार्ट है उसका हिस्सा है, लेकिन उसमें से इंटरप्रेट करना है। जब ये आपके पास आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा सकूं, पीछे आते हैं वापस, ये हमारा लास्ट टाइम बात हुई थी कि दिस इज द लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोग्राम जो कि आप प्रिपेयर करते हैं लुकिंग एट द फील्ड बोर लॉग्स। ये जस्ट वन स्पेसिमेन शीट है कि आप किस तरह से पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे। जो जितने भी टेस्ट परफॉर्म होने हैं उनको आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं, और जो टेस्ट आपने करना है, जिस डेप्थ पे करना है, जिस किस्म के सैंपल पे करना है, उसके सामने जाके आप टिक कर सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है जी। आफ्टर टेस्टिंग ये आप कह लें समरी ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स हैं,
जो कि आपने इंडिविजुअल शीट्स के ऊपर आपके पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द बोरहोल 1 सैंपल इज SPT1 3 मीटर्स डेप्थ के ऊपर आपने टेस्ट किया। आपके पास इसकी एक इंडिविजुअल शीट मौजूद है एंड देन फ्रॉम हेयर लिक्विड लिमिट परफॉर्म किया, सल्फेट, क्लोराइड और दिस एवरीथिंग। इसी तरह से आपने एक शीट या दो शीट के ऊपर आपने ये समरी जो है वो प्रिपेयर कर ली। सो नो इट्स वेरी इजी टू सी कि आपके सामने रिजल्ट्स मौजूद हैं। लास्ट टाइम मेरा ख्याल ये बात हो चुकी थी कि जो आपने एक फील्ड बोर लॉग बनाना है, इंडिविजुअल बोर लॉग्स का, दिस इज जस्ट वन स्पेसिमन। उसके ऊपर आपका जो जिसने काम किया है उनका नाम आएगा। डिटेल्स मींस बेसिक डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम है, टाइप ऑफ बोरिंग है, बोरहोल डायमीटर्स है, डेप्थ्स हैं, सरफेस लेवल्स हैं, ग्राउंड वाटर टेबल है, who was the supervisor and when the work was done, and then from starting from zero नीचे आप depth wise चलते जाते हैं, and then for each layer you write 3-4 things like the colors which you have seen from the field logs. The consistency is mainly come from the SPTN value. For cohesive soils and non-cohesive soils, terminology जो use होती है that we have already discussed: medium, stiff, very stiff, hard for cohesive soils, and for non-cohesive soils is generally very loose, medium dense, very dense sort of. Plasticity, you have to indicate whether it's a low plastic. If the liquid limit PI value is generally less than 7, so it's rated as low plastic. Or non-plastic or medium plastic if it is between 7 to 18 or 19, and generally if it is more than 20 PI value, so we say that it's highly plastic. And the type of the soil, the silty clay, then you have silty clay oblique silt, then another layers, and then you can see the medium dense, so no cohesionless soils. So this way you go, you may use one sheet or 2 sheet, 3 sheets, so depending upon the depth of the borehole. For example, if it's a 100-foot borehole, so you may use 2 sheet, 3 sheets. So in that case, you may indicate at the top somewhere here, this is sheet number 1 of 3 or sheet number 2 of 3, like that. Then based on all the individual borehole logs, so you plot these borehole logs on some single sheet or 2 sheets, so that you can see from here. For example, for this borehole, this layer, the first layer is going up to say 10 meters. At the other, it goes 13 meters, and at other locations, you see this layer is not there. For example, this particular is in hilly area. It seems that this borehole may be at some you can say abutment or like that, but generally in case of plain area we do not have sort of this sort of issue. Then geotechnical design parameters. So based on this summary of laboratory test and based on the borehole log, then you summarize the borehole log. This is the geotechnical design parameter selection. This is your first, you can say, the exam, or what you can say कि आपका काम है कि आपने मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स आपको चाहिए एनालिसिस के लिए वो आपने वर्टिकली लिस्ट डाउन कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल यू मे यूज द SPTN वैल्यू, डिजाइन SPTN वैल्यू हमने कहीं यूज करना है किसी कोरिलेशन में, हमने कोई फॉर एग्जांपल को पैरामीटर्स मालूम करने हैं, तो जनरली दीज SPTN वैल्यूज कैन बी N60. अगर आपको याद हो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यू हैव करेक्टेड द फील्ड डाटा टू द प्रोसीजर्स, and it can be N160, so depending upon, so most of the time it is N60 without the overburden correction. Unit weight है, undrained cohesions है, undrained angle of internal friction है, drain angle of internal friction है, adhesion factor alpha है, ये pile डिजाइन के लिए यूज होता है, elastic modulus की वैल्यू चाहिए होगी, Poisson's ratio चाहिए हो सकता है, coefficient of compressibility, or it can be other parameters.
This is the stratum 1, this is stratum 2, 3, 4. ठीक है जी, for different soil layers depending upon the specific data of the soil. So you get this value. For example, unit weight है, you have this UDS value, आपके पास unit weight आ जाएगा. तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमें judgment use करनी. For example, you have one UDS recovered and then you brought it to the laboratory to extrude this sample for unconfined compression test, and you find this unit weight, it can be very high maybe. Okay. It's obvious that that indicate that during pushing of the shell bite tube in the field and then extruding the sample by pushing from one end, the sample may be compressed, highly compressed, if all things are not very, you can say, in order. For example, extruder, if the tube is not frictionless, it's rusted tube in from inside, then a lot of friction will be there. So when you are pushing the sample to come out or while recovering the sample, a lot of compression can take place. But we have to see what is the SPTN value. So ठीक ना, आपके सामने लिखा हुआ है कि SPTN value 8 है. So the soil is firm, medium stiff, not very stiff. So the unit weight cannot be extra high values, despite कि आपके पास laboratory test data ये कह रहा है कि ये value जो है उसे 24 है, ठीक है. Similarly for second layer, third layer, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेस के ऊपर मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपका SPTN वैल्यू है ये गवर्न करती हैं while selecting this one, because this is the actual field data जो कि आपको फील्ड से मिला है, ठीक है. इसी तरह से undrained cohesion you can get from unconfined compression test. Again we have relations. Sometimes if I can show you that with the SPTN value, so there is a relation कि आपके N के साथ cohesion की value तरजागी और एक दो और लोगों ने correlation जो है वो develop किए हुए हैं. So looking at your results, looking at those relationship, you can select this value. तो based on experience, generally SPTN की base के ऊपर और laboratory data को देखते हुए आप value जो है ना select कर लेते हैं. वही undrained angle of internal friction, obviously it will be 0, but if the conditions can be drained, so values. So this comes from the laboratory test, undrained and you can say the drained triaxial test हम कर सकते हैं. For large project we can afford, but for normal project generally it's not done. So similarly, on the right side you can see improved soil conditions. Sometimes our soil at the surface, as is indicated here, that the top 3 meters soil is not very good. It's just firm, means it's not good in stiff conditions. So sometimes we replace the topsoil just below the foundation, what we call as a structural fill layer of 1 to 2 meters, sometimes 3 meters, because immediately below the foundation we need a very good compacted soil so that the settlements are controlled. So in that case, we use this structural fill material. Generally, it's a cohesionless material, granular material. It can be sand, but most of the time it can be sand and gravel mix, like 50-50, or it can be 30% gravel or 70% sand. So this material is sometimes known as structural fill layer or granular cushion. Okay? So for this layer, obviously when you provide this layer, so this layer भी analysis में आएगी, तो उसके क्या parameters होंगे वो भी आपने select करने हैं. तो ये this is the important task which you have to, because these parameters will be used in all coming analysis. This table is very important. Now, based on this task, आपने laboratory test कर लिया, आपने summarize कर लिया, then you prepare the profile based on the various borehole logs. You select the design parameters. So then you develop this subsoil profile at your site. ठीक है, ये वो profile है जैसे आपने देखा होगा बुक्स में भी एज ए स्टूडेंट जब आप सेटलमेंट एनालिसिस करते हैं या वेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस करते हैं तो यू सी ऑन बुक अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफाइल व्हिच इज ड्रॉन देयर.
say 0 to 15 meters is this soil, and these are the parameters, and from 15 to 45 this is type of soil type, and these are the parameters, and this is the soil, and these are the parameters. ठीक है ना जी? तो ये एक्चुअली दिस इज द आउटकम ऑफ द फैक्चुअल रिपोर्ट, जो आपने सारा काम अभी तक किया था पीछे, उसकी बेस के ऊपर वी आर एबल टू डेवलप द सॉइल प्रोफाइल ऑफ योर साइट, which will indicate obviously what type of soil strata is. Preferably we can write the range of SPTN value so that we can visualize quickly कि आपकी सॉइल की कंडीशंस क्या हैं, और उसके जो सॉइल पैरामीटर्स हैं जो कि एनालिसिस में यूज होंगे अगर आपने हमें इफ यू हैव टू परफॉर्म द सेटलमेंट एनालिसिस, बेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस, जो कि हमने अभी करना है, तो उसमें जो पैरामीटर्स यूज होने हैं जितने भी वो पैरामीटर्स हमने पीछे टेबल में हम बात कर रहे थे, तो ये पैरामीटर्स हमने असाइन कर दिए इस लेयर के लिए, फॉर द नेक्स्ट लेयर, फॉर द नेक्स्ट लेयर। तो ये टास्क जो है वो हमारा आप कह लें कि फैक्चुअल रिपोर्ट की बेस के ऊपर आपने ये सब सॉइल प्रोफाइल डेवलप कर लिया। नो फ्रॉम नो ऑनवर्ड अब हमारा जो काम है वो एवेल्युएशंस ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट है, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो एक्चुअली जिसको हम इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट कह रहे हैं वो यहाँ से शुरू होके आगे एक्चुअल आपका जो टास्क है एज जो टेक्निकल इंजीनियर वो मेनली यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये तो सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपने पेश कर दिए कि जो ऊपर वाली सॉइल वीक है, नीचे इस किस्म की सॉइल है, ये इस किस्म की सॉइल है। Now when you are placing your development at the site, it can be building or it can be embankment or any other load, so then what will happen to the underneath ground? So that you have to predict. How accurately you can predict, that is your skill. Now interpretative report, जो कि जिस पे आप आज हम इसमें शुरू करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हमें करनी है। वी हैव टू परफॉर्म द वेरियस जो टेक्निकल एनालिसिस, कुछ एनालिसिस जो हमें करेंगे वो मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। दिस इज फर्स्ट इज द बेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस and the settlement analysis. Actually these two steps are combinedly known as the evaluation of the allowable bearing capacity of the site. As structural engineer, agar aapne suna ho, sometimes to structural engineer it's very just a one value, like say 1.5 ton per square feet or 0.75 ton per square feet, एक वैल्यू उनको चाहिए और जिसकी बेस पे आपने अपना एनालिसिस करना है। बट टू गेट दिस वैल्यू, one single value, you have to go a lot of you can say analysis. उसकी बेस के ऊपर आप कह पाएंगे कि आपका जो बेयरिंग कैपेसिटी है आपकी साइट की वो क्या है। तो we need to perform the bearing capacity analysis which is based on shear failure criterion. Then we have to perform the settlement analysis. Liquefaction analysis is another very important for sites which are prone to you can say the earthquake vibrations. You will be knowing that Pakistan Building Code has developed the various zones of the Pakistan. These days they are trying to, you can say, the modify or the update this building code. 4 zones of whole Pakistan, you can say, उसमें जो जोन पंजाब है मेनली जोन 2A और 2B में कुछ पार्ट्स आते हैं, जो मैं किसी वक्त आपको दिखाऊंगा। एंड ईच जोन हैज बीन डेजिग्नेटेड सम वैल्यू ऑफ द पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन PGA। तो उसके बेस के ऊपर वी विल परफॉर्म द लिक्विफेक्शन एनालिसिस टू नो whether if highest earthquake occurs at your region, at your site, whether the underneath ground is going to liquefy or not. So this analysis indicates the resistance to liquefaction in terms of factor of safety. So we will calculate, we will come out with the analysis. If the factor of safety is less than 1, so we can say the site is prone to liquefaction. जब हम इसकी बात करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। Then another analysis or characterization is required is the seismic site zone
जैसे मैंने कहा कि ये तो आपने स्पेसिफाई करना है बेस्ड ऑन दी मैप जो कि दिया हुआ है, उसकी बेस के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे. नॉट मच एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर दिस एस्पेक्ट. सॉइल प्रोफाइल कैरेक्टराइजेशन, इसमें भी बिल्डिंग कोड और यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड के टेबल्स मौजूद हैं. उसकी बेस के ऊपर हमें कैरेक्टराइज करना है कि आपकी जो साइट है उसका स्पेसिफिक जो सॉइल प्रोफाइल है उसका SA है, B है, C है, D है, तो वो हम देंगे. उसकी बेस के ऊपर व्हेन यू गो फॉर द स्ट्रक्चरल डिजाइन यू हैव टू सिलेक्ट द कोफिशिएंट एक्चुअली. तो इसमें मेनली जो हमारे एनालिसिस होंगे जो कि comprehensive होंगे, which is bearing capacity analysis, settlement analysis और liquefaction analysis. तो ये 3 analysis जो हैं वो important होंगे. तो ये in the जो हमारे coming lectures रह गए हैं, तो I'll try to elaborate these analysis, but if you want to really want to be expert, so you need to exert at your end. उस पर्पस के लिए आई वुड से कि आपको एंगेज किया जाए और जी, यहाँ तक कोई अगर बात आपने पूछनी है तो इफ यू हैव एनीवन क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट. जी, नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक. आपका माहौल ही नहीं क्वेश्चन पूछने वाला यार. हाँ, आप मेरी तरह किसी अलग जगह पे बैठे हो तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आपके पीछे तो हंगामा है. नहीं सर, हम भी अकेले ही बैठे हुए हैं, इतना शोर तो नहीं है. हमसायों का शोर आ रहा है. जी सर. मैं क्या हमसायों के बच्चों का शोर आ रहा है. सर मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी अभी फैकल्टी को इन्होंने छुट्टियां नहीं की हुई है, तो इस वजह से मैं भी हॉस्टल में अकेला बैठा हुआ हूँ. अच्छा, चलिए. जी सर. अच्छा, ये आपको स्लाइड नजर आ गया? स्लाइड शेयर हो रही? जी सर, हो रही है ये शो, लेकिन थोड़ा सा जूम कर दे, जूम थोड़ा सा कर दे तो ये बिल्कुल बहुत छोटा नजर आ रहा है सर. स्लाइड जब शेयर कर देते हैं तो ये कैसे होगा? मुझे तो लगता नजर आना चाहिए. मुझे आ रहा, आपको नहीं नजर आ रहा? सर बहुत जूम सर, ये आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ना ये 100% नीचे आ रहा है. हाँ, बिल्कुल कोने में. जी. वहाँ जी सर, वहां से कर दे. चलो जी, बड़ा कर देते हैं. अब हुआ कुछ? जी सर, ठीक हो गया. ओके. तो ये आपके लिए जो है ना एक टास्क है जो कि रियली आई होप कि अगर आप इसको ऑनेस्टली कर लें तो आपको जब आप स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो आपको किसी के बच्चे से पूछना नहीं पड़ेगा कि यार ये सॉइल का ये वाली चीज कैसे हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैसे करेंगे. एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के तौर पे मैं सोच रहा था जो हम काम करेंगे, जो अभी तक आपने किया, तो ये आपकी आउटकम होगी. ये जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो हम सबमिट करते हैं क्लाइंट को, आपने सबने इस रिपोर्ट को फर्निश करना है और वो हमें सबमिट करना है. तो ये दिस विल बियर अ मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर डिजाइन पार्ट, जिसको आयशा डील कर रही है. तो इसमें डिटेल्स इसकी मैं अगर थोड़ी सी बता दूं. सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड बाय ईच स्टूडेंट फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. Each student has to procure a complete site investigation data along with laboratory testing data for any real project from any consulting contracting firm. Our geotechnical lab have so much data of this sort. अगर आप चाहें तो यहाँ से भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. अगर आप अपने तरफ से procure कर सकते हैं तो you are welcome. The site should be such which have been investigated by drilling at least 2 to 3 borings with मिनिमम डेप्थ ऑफ 30 to 40 फीट. तो ये बहुत ही एक बिल्डिंग साइट का मैं चाह रहा हूँ कि किसी जगह की कोई बिल्डिंग बननी है, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, 4 स्टोरी,
तो उस तरह की अगर कोई साइट हो तो उसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जाती है और वो रिपोर्ट किस तरह की फर्निश होगी एट द एंड, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। तो ये तो गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द साइट, डायमेंशन, नंबर ऑफ बिल्डिंग स्टोरीज टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो ये इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली चाहिए होती हैं। तो ये वो डाटा है जो कि आपको चाहिए होगा। जैसे मैंने कहा कि वो आप अपने तौर पे, बहुत सारे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं अपने फील्ड में, आप इंडिपेंडेंट ले सकते हैं आप, लेकिन जब भी आप डाटा सेलेक्ट कर लें तो यू शुड शेयर दिस डाटा विद आयशा, और अगर नहीं मिलता तो हमारे पास आयशा हेल्प कर सकती है। सो नाउअडेज वी आर डूइंग लॉट ऑफ जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन फॉर DHA लाहौर, तो उसमें तो हमारे पास बेशुमार डाटा मौजूद है, तो यू कैन टेक दैट डाटा। उसमें हमें करना क्या है, कलेक्ट ऑल अवेलेबल डाटा ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेशन, जो कि बात होगी, दैट इज फील्ड बोरिंग लॉग्स चाहिए होंगे आपको, जिसमें डिटेल ऑफ SPT सैम्पलिंग उसके अंदर होनी चाहिए। साइट फोटोग्राफ्स भी उसका एक पार्ट होता है, दैट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट टोपोग्राफी। और prepare the laboratory testing program looking at the boreholes, ignore the lab results but have been reported in the report। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको जो डाटा मिलेगा वो ज़ाहिर वो प्रोफेशनल रिपोर्ट्स होती हैं, वो बाद दफ़ा बहुत कम्प्रीहेंसिव नहीं भी हो सकती, बट एट योर केस बिकॉज यू आर एकेडमिक स्टूडेंट, तो वी हैव टू कवर द माइनर डिटेल्स एज वेल। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उन बोर होल लॉग्स को देखते हुए पहले आप एक लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोग्राम खुद से बनाएं कि अगर आप जो टेक्निकल इंजीनियर होते तो आप लेबोरेटरी को क्या इंस्ट्रक्ट करते कि what tests you need to perform। उसके बाद जो रिजल्ट होंगे उसको ही लेके आगे चल जाएं आप बेशक, लेकिन you try to prepare your own laboratory testing program। Then you compile the field and laboratory testing data and prepare the boring log, even you have the work done earlier, you just repeat। पॉइंट ये है क्योंकि अब आप ऑफ ऑन कैंपस भी नहीं है, तो चाहे आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट ही क्यों ना मिल जाए, चाहे आप उसको उसी को ही दोबारा रीड्रॉ कर लें, लेकिन आप खुद से करें। ठीक है जी, तो कहने का मेरा ये मतलब है इसमें प्रिपेयर द सॉइल प्रोफाइल फॉर द साइट यू हैव सिलेक्टेड। तो जैसे मैंने आपको एक साइट प्रोफाइल दिखाया, वो प्रोफाइल ड्रॉ करें बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी टेस्ट जो आपके पास, चाहे वो लिमिटेड हैं, बट यूज SPTN वैल्यू बेसिकली एंड द टेबल विच वी हैव डिस्कस अर्लियर और आपके साथ शेयर किया हुआ है करदागी एंड पेक का, फॉर कोहेजनलेस सॉइल, फॉर कोहेसिव सॉइल, उसमें जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन SPTN वैल्यू। तो मेरा ख्याल आपके लेवल पे वो टेबल जो है वो बहुत यूजफुल होगा, और ट्राई करें कि आप अपने पैरामीटर सेलेक्ट करें, डोंट फॉलो द रिपोर्ट में से सिर्फ डाटा आप पिक करें, उन्होंने कैसे आगे किया हुआ है उसको फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि जो आपको प्रोफेशनल रिपोर्ट्स मिलेंगी वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, उनकी जो माइनर इनर डिटेल्स हैं वो रिपोर्ट में नहीं होती। जनरली वो बैक एंड पे हम एनालिसिस कर लेते हैं और रिपोर्ट में आप आउटकम्स मोस्ट ऑफ द टाइम कर लेते हैं, लेकिन आपके लेवल पे आपने सारी जो इनपुट डाटा है, जो आपके एनालिसिस हैं, वो आप अपेंडिक्स में या जैसे भी आप बेहतर समझेंगे रिपोर्ट के अंदर ईच एंड एवरी थिंग लगाएंगे। हो सकता है जो आपको डाटा दिया जाए या रिपोर्ट जो बहुत ही छोटी हो, लेकिन आपके लेवल पे हम समझते हैं कि जितने भी आप एनालिसिस करेंगे, उसी आपने सेटलमेंट एनालिसिस किया है, बेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस किया है, या लिक्विफेक्शन एनालिसिस या जो भी एनालिसिस किया, तो उन सब की डिटेल्स इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। So then you perform various geotechnical analysis to evaluate the bearing capacity of various types of the foundations। जैसे मैंने कहा कि पहले हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दे देते हैं प्रोफेशनल रिपोर्ट में कि जी आप स्टिफ फुटिंग रख लें इस डेप्थ के ऊपर और ये बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू दे दें, लेकिन इस लेवल के ऊपर हम चाह रहे हैं कि आप एक कम्प्रिहेंसिव करेंगे, मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। If you go for a strip footing, if you go for a isolated footing, if you go for a raft foundation, ठीक है जी, तो क्या ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन है तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी या रिकमेंडेशंस क्या होंगी, अगर वो है तो वो क्या होंगी।
तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एवेल्युएशन ऑफ सेफ्टी फैक्टर अगेन लिक्विफेक्शन, इसको अभी थोड़ा ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। एवेल्युएशन ऑफ एनी पोटेंशियल हैजर्ड लाइक सॉइल एक्सपेंसिवनेस, कोलैप्स पोटेंशियल और एनी अदर। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द रिपोर्ट जिसको हमने एड्रेस करना होता है कि कोई साइट के ऊपर कोई हैजर्ड तो का पोटेंशियल तो नहीं है, एक्सपेंसिवनेस सॉइल्स की हो सकती है, कोलैप्स पोटेंशियल हो सकता है। इस लेवल के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द लिटरेचर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें शायद अगर पहले बात हुई है कि जो सॉइल एक्सपेंसिव सॉइल्स होती हैं वो हाईली प्लास्टिक क्लेज हैं, CH फॉर एग्जांपल क्लासीफाई होती हैं। तो आपके केस में फॉर एग्जांपल द सॉइल इज सिल्ट ML है, सैंड है, तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन जस्ट गिव अ एक्सप्लेनेशन इन योर रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए पैरा कि चूंकि इस किस्म की जो हैजर्ड है वो is associated with this type of soil and soil at our site are not that, so therefore the chances of soil expansiveness are eliminated, are not there. So this way हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। पॉइंट C जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, बेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस बेस्ड ऑन shear failure and for permissible settlement। आज मैं उस पर कुछ बात करूंगा कि जब हम बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं सॉइल की, आपने नाम सुना होगा कि बेयरिंग कैपेसिटी से मुराद ये है कि दैट द सेफ प्रेशर द सॉइल कैन टेक। इसके दो एस्पेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली वी नीड टू कंसिडर। वन इज द shear failure क्राइटेरियन के वो ये है कि आपकी जो फुटिंग है दैट शुड नॉट पंच इनटू द ग्राउंड, इट शुड नॉट shear। अब आप देखेंगे कि हाउ मच इज द प्रेशर व्हिच इज द मैक्सिमम प्रेशर व्हिच द सॉइल कैन टेक विदाउट फेलियर, shear failure, वो एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देन देयर इज ए परमिसिबल सेटलमेंट। हो सकता है आपकी सॉइल जो साइड के ऊपर shear में फेल तो ना हो, बट इट कीप ऑन सेटलिंग फॉर मच यू कैन से डेफॉर्मेशन। तो हमें सेटलमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो इट मीन्स कि आपको सेटलमेंट की जो लेवल्स हैं, परमिसिबल लेवल्स फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स वो स्पेसिफाई हैं लिटरेचर में, और shear failure की बेस पे दोनों में से जो मिनिमम होगी उस वैल्यू को हम अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी का नाम देंगे। तो ये देखने में तो एक लाइन है, लेकिन इसके पीछे काफी सारा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे नीचे C के नीचे 1, 2, 3 में मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपसे रिक्वायर किया है कि आप ये करें। बेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए करें विद रिस्पेक्ट टू shear एंड फॉर 25 मिलीमीटर सेटलमेंट, फॉर फुटिंग विड्थ from 1 meter to 3 meters and footing depth 1 meter, 2 meter, 3 meter and plot bearing capacity curves। तो इसमें अगर आप मैं देखूं तो आपको को 10-12 एनालिसिस करने पड़ेंगे एंड देन यू विल कम अप विद द बेयरिंग कैपेसिटी कर्व कि जिसमें आप अगर 1 मीटर डेप्थ कंसीडर करते हैं तो आप 3 एनालिसिस करेंगे, फुटिंग की विड्थ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर करते हुए, shear failure के लिए सेपरेटली और सेटलमेंट के लिए सेपरेटली। तो आप एक इस तरह की 3 कर्व्स जनरेट कर देते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी कर्व। दीज आर वेरी यूजफुल प्लॉट कि आपको लेटर ऑन आप कोई भी ऑप्शन पे जा सकते हैं आपका जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। और बड़े प्रोजेक्ट में जनरली जो TOR होती हैं, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, उसमें ये लिखा होता है कि आपने ये करना है। बेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस फॉर आइसोलेटेड फुटिंग्स, ठीक है जी। उसी तरह से आप मुख्तलिफ विड्थ के लिए और मुख्तलिफ डेप्थ के लिए उसकी भी कर्व हमें चाहिए है। फॉर मैट फाउंडेशन उसी तरह बेयरिंग कैपेसिटी कर्व्स जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये 3 फुटिंग की जो टाइप हैं शैलो फाउंडेशंस की वो कॉमन है, तो ये आप तीनों कंसिडर करेंगे। उसके बाद recommendations regarding the construction works like foundation and other earthwork, you have to specify the compaction level for foundations upgrade or for other fillings, recommendation for use of cement for substructures। तो ये एक सेक्शन है आपकी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का, जिसमें आपने स्पेसिफाई करना है कि हम अगर बेसमेंट है तो उसकी एक्सकवेशन में क्या मेजर्स लेनी पड़ेंगी, और अगर आपकी सॉइल वीक है हमें उसको रिप्लेस करना है, तो जो सॉइल हम उसकी जगह पे जिससे आप रिप्लेस कर रहे हैं वो किस किस्म की सॉइल होगी, जिसकी एग्जांपल मैंने पीछे आपको बताई कि स्ट्रक्चरल फिल या ग्रैनुलर सॉइल जो है वो हम यूज करते हैं। और जब आप सॉइल को
ऑब्वियसली फिल करेंगे तो आपके कंपैक्शन लेवल्स होंगे, ऐसे तो नहीं कि हम 1 मीटर की फिलिंग करनी है तो ला के फिल कर दें, इट्स नॉट, इट विल बी अ कंट्रोल फिलिंग दैट यू विल फिल इन लेयर्स। जनरली लेयर्स की थिकनेस मैक्सिमम 1 फीट तक होती है और उसके कंपैक्शन का लेवल स्पेसिफाई होगा। होपफुली आपने सुना होगा रिलेटिव कंपैक्शन की टर्म्स में 95%, 100%, 98%, ठीक है जी। टाइप ऑफ सीमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है फाउंडेशन के लिहाज से, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर द केमिकल एनालिसिस ऑफ योर साइट, कि आपकी जो साइट है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स ना हों जिसमें मेनली सल्फेट और क्लोराइड्स हैं। व्हेन द सॉइल हैज यू कैन से अबंडेंट सल्फेट कंटेंट, तो आपका जो सीमेंट है वो डिटीरियोरेट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इट मींस कि जो वो कंक्रीट जो सॉइल के साथ इन कांटेक्ट आएगा, उसके यूज उसको बचाने के लिए हमें सीमेंट की कोई ऐसी टाइप यूज करनी पड़ेगी जिससे जो सल्फेट हैं उसके ऊपर अटैक ना कर सकें। इसी तरह क्लोराइड्स हैं, तो ये भी एक पार्ट है आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का कि आपने केमिकल एनालिसिस करना है और आपने देखना है कि जो साल्ट्स हैं विदिन द सॉइल एंड वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल, इफ द ग्राउंड वाटर टेबल इज नियर, और द टाइप ऑफ द फाउंडेशन इज लाइक पाइल है जो आपके वाटर टेबल से नीचे जा रही है, तो उस केस में आपको सॉइल एंड वाटर केमिकल एनालिसिस भी करना पड़ता है। और एट द एंड comprehensive जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड, ठीक है जी। तो ये सारी जो चीजें ऊपर हैं उनको एक फॉर्मेट के तहत फार्मूलेट करके आपने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ये सारे इस रिपोर्ट के कंपोनेंट हैं। हमारी जो आने वाले लेक्चर्स हैं तो उसमें मैं हाईलाइट करूंगा और आपको ये एनालिसिस जो है वो करने पड़ेंगे। और कीप इन माइंड कि ये सिग्निफिकेंट इसकी वेटेज होगी इन द इवैल्यूएशन, और आई वुड से कि आपका डाटा ऑब्वियसली डिफरेंट होना चाहिए हर एक का, और ट्राई एट योर एंड कि आप अपना काम खुद से करें। आई होप कि अगर आप इस प्रैक्टिस से गुजर जाएंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी फीलिंग कि आपने इस सब्जेक्ट से कुछ हासिल किया। तो दैट इज दी प्रोजेक्ट, इसको टर्म प्रोजेक्ट या असाइनमेंट, वट एवर यू वांट टू से। तो इसमें यूज ऑफ एक्सेल वर्कशीट हैज टू डेवलप फॉर सेटलमेंट एंड बेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस, चूंकि इसमें बहुत सारे एनालिसिस जिस तरह इन्वॉल्व हैं और माशाल्लाह आप इंजीनियर हैं, तो इसमें फिजिकल एनालिसिस से आप ये मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। स्पेसिमन वर्कशीट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम आई कैन शेयर विद यू कि इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से डेवलप करेंगे, ठीक है जी। और इसकी जो सबमिशन है जब हमारा कंक्लूडिंग वीक होगा तो उसमें आपने इसको सबमिट करना है। तो ये एक असाइनमेंट है जो कि एक बड़ी असाइनमेंट है, बट इट विल बी वेरी यूजफुल आई वुड से। तो रिगार्डिंग दिस इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे तो ऐसे तो नहीं लगता कि मुझे आपने लेक्चर पे लगा के और आप सो गए। ये सर ये बताएं यूटी के अंदर ये जो सॉइल केमिकल टेस्टिंग हो रही है, केमिकल डिपार्टमेंट करता है या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? करते हैं सर। जी बस खत्म, इससे रिलेटेड तो कोई बात नहीं पूछी यार आपने, मुझे तो यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन पूछी। सर डाटा के हवाले से ज़रा बता दें, डाटा हम किसी साइड से नहीं ले पाते तो ये सारा डाटा क्या हमें प्रोवाइड किया जाएगा? फिर मैं माशा की तरफ नहीं, कोई नहीं प्रोवाइड करने आएगा, आपको लेना पड़ेगा। हमें कहेंगे, किसी मिंतरला करेंगे किसी का तो मिल जाएगा, प्रोवाइड मैं कोई नहीं करूँगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर आके लें अपने कुछ जैसे भी करें, ठीक है ना। तो ये भी तो एक टास्क है ना कि डाटा आप लें, घर से निकलें थोड़ा सा मास्क पहन के। मेरा ख्याल है कि सिर्फ यूनिवर्सिटियों के और लेवल पे ही कोरोना को ज्यादा फैला दिया, बाहर तो हालात ठीक ही है। क्या ख्याल है? सही है। काइंडली इसका बेयरिंग कैपेसिटी कर्व्स का बता दें कि फॉर एग्जांपल हमने
अगर मैं आइसोलेटेड फुटिंग के लिए बनाता हूँ तो मैंने सबसे पहले 1 मीटर की विड्थ लेनी है और 1 मीटर की डेप्थ लेनी है। उस पे मैंने शेयर फेलियर और सेटलमेंट फेलियर करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 मीटर डेप्थ एंड 2 मीटर अभी विड्थ। मैंने 6 हफ्तों में यही काम करना है, अगले 5-6 वीक है ना, मैंने यही आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे थोड़ा है कि सिर्फ आपको असाइनमेंट ही देनी है, ठीक है। इंशाल्लाह ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब जो आप कह रहे हैं ऐसे ही है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक पैरामीटर सेलेक्ट कर लिया ना, फॉर एग्जांपल एक डेप्थ हमने सेलेक्ट कर ली है, तो उसमें विड्थ वेरी करते जाएंगे। जब वो सेट पूरा हो जाएगा तो आप डेप्थ को 2 मीटर कर देंगे, फिर उसी प्रोसेस को रिपीट कर देंगे, फिर डेप्थ 3 मीटर कर देंगे, फिर रिपीट कर देंगे। उसी तरह ये जैसे आप सोच रहे हैं। सर इसमें हमने फैक्चुअल रिपोर्ट भी बनानी होगी या डायरेक्ट हम इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट? नहीं बनानी है। फैक्चुअल रिपोर्ट तो डाटा ही है जो आप लेंगे, उसी को प्रोड्यूस कर देना। ठीक है सर। ठीक है ना, वो डाटा तो होगा तो कोई देखने वाले को पता लगेगा ना कि आपने इस डाटा में से ये इंटरप्रेट किया। एक्चुअली वो फैक्चुअल रिपोर्ट सेपरेट बनती है ना और इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट सेपरेट बनती है, तो वो मैं पूछना चाह रहा था। नहीं सेपरेट नहीं बनती, बिल्कुल एक ही सेटअप बनता है। सेपरेट आपको किसने कहा सेपरेट बनती? सर वो प्रोजेक्ट जब जैसे ही फील्ड की टेस्टिंग खत्म होती है तो वो फैक्चुअल रिपोर्ट मांगते हैं ना क्लाइंट वगैरह, तो वो सब पहले भेजते हैं, तो उसके बाद इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट जब बन जाती है तो उसके बाद फिर वो चीज़ बन जाती है। मैं इस वजह से पूछ रहा था। वो पहले बना देते हो, लेकिन जब आप ये कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो वो सारी चीजें जो पहले भी दी हुई हैं उसके अंदर करके ही देंगे ना। ठीक है सर। और सर दूसरा ये कि केमिकल एनालिसिस भी हमें पढ़ाया जाएगा या वो मतलब कि केमिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल, उसके कितने क्या पैरामीटर्स हैं, या वो हमें खुद से करना है? मैं आपसे करूंगा शुरू इंशाल्लाह। ठीक है सर। उसमें हमें ये देखने की जरूरत है ना कि अगर हमारे पास केमिकल एनालिसिस आ गया है तो उसकी बेस के ऊपर हमने किस तरह इंटरप्रेट क्या करना है उसमें से, तो वो हम शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। जी सर। ऐसे और कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, मतलब कि क्लोराइड्स के या सोडियम के या सल्फेट्स के, वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी गाइडलाइंस वगैरह? उसी की बात ही मैं कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ ठीक। कि वो लिमिट्स क्या होंगी। अगर आपने एनालिसिस कर लिया है कि आपको एनालिसिस करने वाले ने बता दिया कि आपके सॉइल सैंपल में क्लोराइड जो है वो इतने % है और सल्फेट इतना है और वो और जो भी केमिकल हैं वो इतने % हैं, तो उससे फिर आप कैसे आप डिसाइड क्या करेंगे हमने क्या यूज करना है, सीमेंट किस तरह का यूज करना है या आपका कंक्रीट किस तरह का होगा, तो वो गाइडलाइन जो है कोड की वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक। सर इसके अंदर जो हम कुछ फीड डाटा कलेक्ट करेंगे, मतलब हम टेस्ट जो है वो अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे, लेकिन जब हम किसी क्लाइंट से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोई रिपोर्ट मांगते हैं और उसने किसी और टाइप के टेस्ट उस सॉइल सैंपल के ऊपर परफॉर्म किए हुए हैं, तो हम अपने यानी कि नॉलेज के मुताबिक उसकी टेस्टिंग डिसाइड करेंगे या हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर जो क्लाइंट ने की होगी या कॉन्ट्रैक्टर ने की होगी? मैंने ये कहा है कि आप अपने तौर पे एकेडमिकली आप लिख दें कि जी इस तरह के टेस्ट होने चाहिए थे, लेकिन टेस्ट जो आप यूज करेंगे वो तो आप बाउंड है ना वही यूज करने की। आपके पास तो ना सैंपल है और ना आपने वो टेस्ट करने हैं, ठीक है ना। तो आप उन्हीं रिजल्ट को यूज करके आपने उसके बेस पे, उन्होंने भी तो एक इंटरप्रिटेशन एनालिसिस किए हुए हैं ना, तो आप भी करें एंड लेट्स सी कि उनका एनालिसिस और उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो, ठीक है ना। तो रिजल्ट तो हमने वही यूज करने हैं जो आप डाटा लेंगे। आपके पास अपने रिजल्ट तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये रिजल्ट टेस्ट होने चाहिए थे। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप अपना लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोग्राम एक जरूर बनाएं कि आपके ख्याल में ये टेस्ट भी होना चाहिए। और अगर सर कोई टेस्ट ऐसा है कि जो हम कहते हैं कि ये इसके करने की जरूरत नहीं है, तो वो स्किप भी कर सकते हैं उसके अंदर से जो उसने परफॉर्म किया होगा पहले, जिसका डाटा भी होगा हमारे पास। आपके कहने पे कोई पाबंदी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीक आपके लिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपका जो दिल करता आप कहें, यू आर इंडिपेंडेंट जो टेक्निकल एक्सपर्ट, आप ये ना कहें कि उन्होंने क्यों किया, आप कहें कि मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। क्या ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, ये सीज़मिक डिजाइन इफेक्ट जो है हम रिपोर्ट में किस तरह इंटरप्रेट करेंगे जी? सीज़मिक डिजाइन जो है, सीज़मिक इफेक्ट जो है हम अपनी रिपोर्ट में किस तरह उसको मेंशन करेंगे? जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि इसमें 2 चीजें, एक तो हमें साइज़मिक सॉइल प्रोफाइल देना पड़ता है, उसकी बात करेंगे, वो मुख्तलिफ प्रोफाइल हैं
फॉर एग्जांपल SA है, SB है, ये दोनों A और B रॉक की टाइप को बताते हैं। C जो है वो वेरी डेंस सॉइल है, D जो है वो स्टिफ सॉइल है, SE जो है वो सॉफ्ट सॉइल है। एक तो ये हमें, ठीक है ना। और इसी की बेस के ऊपर फिर ना हम जो ये मुख्तलिफ जो कोड हैं, जैसे बिल्डिंग कोड है, यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड है, IB है, वो डिफरेंट उनकी नोटेशन है, वो सॉइल का ग्रुप, उस सॉइल ग्रुप के अगेंस्ट फिर साइज्मिक पैरामीटर्स हैं, कोफिशिएंट हैं। मेरे ख्याल जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उनको पता होगा। तो उस ग्रुप की बेस पे जो साइज्मिक प्रोफाइल है उसकी बेस पे यू कैन सेलेक्ट द साइज्मिक पैरामीटर्स, और जो ग्राउंड एक्सेलरेशन है उस एरिया का, वो जैसे मैंने कहा कि जो आप जोन डिफाइन कर देंगे कि जी इसका आपका सॉइल जो साइट है, जो साइट जोन 2A में है, 2B में है, 3 में है, 4 में है, तो वो जो साइज्मिक मैप दिया हुआ है उसके ऊपर वो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है पी ग्राउंड एक्सेलरेशन की वो स्पेसिफाई की हुई है, वही हम बता देंगे। तो इस तरह से वो पैरामीटर्स आपने व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द मॉडल फॉर बिल्डिंग मॉडल बनाएंगे, उसमें जो सॉइल की रिप्रेजेंटेशन है वो इन पैरामीटर की शक्ल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। सर एक और क्वेश्चन भी है। लास्ट टाइम आपने मतलब कि करेक्शंस बताई थी उस पे जो SPT की फील्ड की वैल्यू है सर, उसमें एक डाई लेटेंसी करेक्शन भी थी सर, वो आपने क्यों नहीं बताई थी? मतलब कि वो उसकी क्या रीजन थी वो नहीं इंक्लूड हुई? कौन सी करेक्शन थी? डाई लेटेंसी करेक्शन। नहीं, उसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें जो 5-6 करेक्शंस हैं जो N60 के लिए यूज होती हैं। जी सर, N60 के बाद हम वो उसकी ओवरबर्डन की लगाते हैं ना, ओवरबर्डन के बाद एक डाई लेटेंसी जो कि वाटर टेबल के अंदर अगर सॉइल आ जाए कोहेजनलेस, तो उसके उसमें जो है वो करेक्शन लगती है। और वो एक्चुअली SPTN को, हाँ, वो उससे पहले फील्ड डाटा को उसको करेक्ट कर लेते हैं। उसमें जो आप कह लें कि N-15 इंटू 0.5, जो 15 से ज़्यादा SPTN की वैल्यू है ना, उसको 50% वो रिड्यूस कर देता है, तो वाटर टेबल नीचे वो लगाई जा सकती है। सही कह रहे हैं आप। ये सर वो भी हम इंक्लूड लैंड के उसमें कर केस में सकते हैं। जनरली वो हम अप्लाई करते हैं, लेकिन वो आप पहले फील्ड डाटा जो है ना, फील्ड डाटा के तौर पे ही वो करें, जो वो SPTN वैल्यू जो आपके ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे हैं, और अगर वो सैंड है तो उस केस में वो मेरा, if I'm remembering, तो that will be 15 plus N-15 into 0.5। तो उसका ये है कि 15 से ज्यादा जितने ब्लोज हैं उनको 50% कम करके उसमें जमा कर लेते हैं। ठीक है, सर तो वो उसकी क्या रीजन है, मतलब कि वो क्या लॉजिक है इसकी? उसकी लॉजिक ये है कि जो वाटर है नीचे, जब आप ब्लो लगा रहे हैं, या आपका सैंपलर है ना, तो वहां पूर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो वो जो उसका क्या है कि वाटर भी कुछ प्रेशर इमीडिएटली ले लेता है, तो वो रेजिस्टेंस जो है ना, जो SPTN वैल्यू इनहांस्ड वैल्यू है ना, वो ग्राउंड की रेजिस्टेंस नहीं है, वो जो पोर वाटर प्रेशर है उसका भी इफेक्ट है। अगर आप वो पोर वाटर प्रेशर जो है वो वहां पे ना हो, तो वो N की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो वो एक्चुअली उसके पीछे ये कंसेप्ट है कि जो पोर वाटर प्रेशर की इमीडिएट ट्रांजिएंट जो रेजिस्टेंस है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है सर।